students, today we are going to start the topic साइबर सेफ्टी. राइट, साइबर सेफ्टी के बारे में हम लोग जानेंगे. क्या होता है साइबर सेफ्टी एक्चुअली? व्हाट इज साइबर सेफ्टी? लेट्स स्टार्ट द लेसन. इट इज गिवन today age cannot be even brought off without internet, even in dreams. राइट, आज के डेट में हम लोग we cannot live without internet. We have to, we require internet on every step of life, right? Although internet has made many things easier, but at the same time it has posed many security risks too, right? Everything which we are doing as of now, that is depend upon internet. ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेट के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं. बट क्या है, इसके साथ साथ जो हमारे काम है, these are very easy as of now, right? With with the help of internet, our work are very easier. We can do our work easily. But along with it, there is some security risk also, right? If you are accessing internet, if you are not having a updated antivirus, if our firewall is not in active state, then sometimes we can face security related issue. Our system can be hacked. Our data can be stolen by someone, right? So it is given here, if not used in proper way, right? If we will not use our computer in proper way, then we can face many issues. हम लोगों को बहुत सारे issues face करने पड़ सकते हैं, right? I have not shared your book, but you will not saying anything for that. Okay, now it is there. Thus, it is important to know about possible threats. तो हम लोगों को जानना चाहिए what are the possible threats while using internet. क्या क्या threats हो सकते हैं अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं then. So it is given here challenges and risk of working on internet to ensure personal safety and information safety. Right, if you are keeping your personal file on internet, then it can be information security. Anything which you are keeping on internet, that can be stolen by someone. ये कोई इसको चुरा सकता है, and they can misuse it, right? This chapter deals with the same. In this chapter, we are going to study about how we will overcome from these kind of this type of issues. Mute your voice, right? Now, what is cyber safety? What is cyber safety? It is given cyber safety refers to a safe and responsible use of internet so as to ensure safety and security of personal information and not posing threats to anyone else's information, right? So if we discuss about cyber safety, means safety from threats while using online services, right? Means if you are using internet, then our data and personal information should be safe. How we can save it, and if it is like for prevention of data, we use cyber safety. It involves gaining knowledge about possible threats to personal safety and security risk, right? You should know it. If you are using internet, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, राइट? अगर आपको ये पता है क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, लाइक यू शुड चेंज योर पासवर्ड ऑलवेज. आपको अपना पासवर्ड
हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। एंड डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, आप किसी से अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। These are the like part of cyber safety through which you can keep yourself safe. Now there is identity protection with using internet. Identity protection. What is it actually? It is given we serve the internet for variety of reasons, from using social media, buying and selling goods, to sending information. When we give uh, out private data to businesses and others, internet users, we trust them to use the information for lightweight process, right? Meaning is it, जब भी हम लोग अपना कोई भी प्राइवेट डाटा शेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट डाटा हम अपना अगर इंटरनेट पे शेयर करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यू नो, ऑलवेज ऑलवेज व्हेन वी यूज इंटरनेट, जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें नॉर्मल चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो डेटा है हमारा वो सेफ हो, हम अपना पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। इफ यू हैव गिवन टू समवन फॉर लाइक टू बेसिक यूज, देन कीप इट चेंज आफ्टर यूजिंग, राइट। अगर किसी के सामने आपने अपना लाइक लॉगिन किया है खुद को, and if you are shared the password with someone, if you are sharing the password with someone, then you should change it after using, right? Now it is given here internet use, it is given now, this isn't always the case to the financial and personal data can be used for harmful reason like hacking। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या पर्सनल डेटा है, उसको जिसको आप शेयर करेंगे वो क्या कर सकता है, वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। मिसयूज इन द सेंस क्या हो गया कि ही और सी कैन शेयर इट विद समवन, वो क्या कर सकता है, किसी और को भी डेटा आपका क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, राइट। सो दिस इज हार्मलेस फॉर अस, इट विल बी हार्मलेस, राइट। तो हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा डेटा होना चाहिए दैट शुड बी, or our credentials should be with us only, not to share with anyone, right? Now it is given here, yes, stacking and identity fraud. Identity fraud is when personal details that have been accessed or stolen are used to commit fraud acts posing as someone else with stolen identity, right? आइडेंटिटी फ्रॉड वो होता है जब कोई आपकी लाइक कोई आईडी कार्ड है आपका, ठीक है, या फिर आपका आधार कार्ड है, इन सब डिटेल्स को चोरी करके अगर कोई फ्रॉड करता है उससे, तो ये आपका क्या हो जाता है, इट इज योर आइडेंटिटी फ्रॉड, राइट। इन द सेम वे वी हैव, yes, right, in the same way we have, like it is the most common situation is to this is private browsing and anonymous browsing on internet। इंटरनेट पे हम लोगों को प्राइवेट ब्राउजिंग वगैरह यूज करना चाहिए जिससे कि हम लोग इस थ्रेड से क्या हो सके, बच सके, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है ये, यू आर एबल टू सी दिस पेज नाउ, हियर इट इज गिवन न्यू इन कॉग्निट टू विंडो, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्राइवेट विंडो आ गया, ठीक है। दिस इज योर प्राइवेट विंडो, एंड हियर इफ यू विल ओपन एनी वेबसाइट देन दैट विल नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। इस वेबसाइट को कोई और क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता है, understand? So this is private, you can say it is safe way of browsing,
ये आपका क्या है, एक सेफ तरीका है ब्राउजिंग का, जिसके थ्रू आप लोग ब्राउजिंग कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट विल बी सिक्योर. बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, लेट्स talk about what happens when you normally browse the internet. अगर आप इंटरनेट नॉर्मली ब्राउज करते हैं, लाइक यू नो, अगर आप इंटरनेट को यहाँ से ब्राउज करते हैं, if you open anything like this, right, then what should happen? It can be hacked by anyone, it can be seen by anyone. किसी के द्वारा ये हैक किया जा सकता है, किसी के द्वारा ये देखा जा सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, किसी के द्वारा देखा जा सकता है, राइट. बट इफ योर डाटा इज, अगर आपका डेटा जो है वो सिक्योर है, राइट, अगर आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर है, मीन्स लाइक इफ यू आर यूजिंग प्राइवेट ब्राउजर, राइट, देन इन दैट केस nobody can see what is happening inside the browser, ठीक है, उसको क्या है, कोई उसको हैक नहीं कर सकता, कोई उसको देख नहीं सकता, राइट. तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज नॉर्मल ब्राउजिंग एंड व्हाट इज प्राइवेट ब्राउजिंग. In private browsing also there is two type of services, one is paid and one is non paid. तो आपकी जो पेड सर्विसेज होती हैं that are more reliable in comparison to non paid services. जो नॉन पेड सर्विसेज होती है उससे जो है पेड सर्विसेज जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, राइट. तो अब हम देखते हैं मेनी वेज website tracking, right? What are the ways through which website track us? हम लोग तो नॉर्मल सर्फिंग करते हैं, वी आर यूजिंग नॉर्मल इंटरनेट, देन हाउ समवन कैन सी अस, कोई हमें कैसे देख सकता है, यू नो, व्हेन वी लॉग इन इंटरनेट वी यूज टू शेयर like automatically few text file created. जब भी हम इंटरनेट पे लॉगिन करते हैं एंड व्हेन वी ओपन एनी वेबसाइट, few text files created automatically, कुछ टेक्स्ट फाइल अपने आप क्रिएट हो जाती है एंड दोज फाइल्स बेसिकली शेयर आवर इंफॉर्मेशन टू द सर्वर, हमारी इंफॉर्मेशन को सर्वर को शेयर करते हैं, ठीक है. थ्रू दिस वे एनीवन कैन ट्रैक अस, और इट इज गिवन इन योर बुक, whenever you visit a website, your web browser may reveal your location via your device IP address, राइट. जब भी हम इंटरनेट पे कोई साइट खोलते हैं तो हमारा जो IP एड्रेस है उससे जो है हमें कोई ट्रैक कर सकता है. इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, राइट. इससे आपका क्या है, जो आप सर्च करेंगे या फिर आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, जो भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे वो उसके अंदर दिखेगा, राइट. नाउ विच मे बी यूज्ड बाय थर्ड पार्टीज, ठीक है, क्योंकि आपको पता, जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन वी ओपन एनी वेबसाइट इट क्रिएट फ्यू यू नो टेक्स्ट फाइल, कुछ टेक्स्ट फाइल्स आपके वेबसाइट में क्रिएट हो जाती हैं, राइट. जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक टेक्स्ट टेम्पररी फाइल ओपन हो गई, राइट. यू आर एबल टू सी मेनी फाइल्स आर क्रिएटेड while using इंटरनेट यूज करते करते इतनी सारी फाइल अपने आप आपके सिस्टम में क्रिएट हो रही है. सो दैट फाइल यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन डिलीट. इन फाइल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर यूजलेस फॉर अस, ये हमारे लिए क्या है, यूजलेस है. तो हम अपने सिस्टम को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने सिस्टम को हम लोग क्लीन कर सकते हैं, वी कैन क्लीन आवर सिस्टम, राइट. तो ये कुछ तरीके हो गए जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, अंडरस्टैंड. तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं. नाउ इट इज गिवन